Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the TCS banks, some important commands, TCS banks menu reports, how to generate it. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So in our previous video, we had discussed about some important financial commands. And today we will discuss about the TCS banks, some important commands, their menu, sub-menu, reports. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be considered the views of the ICI, CA Sansaar or any other person or any other authority. And don't take it like the professional or the legal opinion or the professional or the legal advice. And purpose of this video is only to spread knowledge, awareness and information and shall not be treated as solicitation in any manner or any for any other purpose whatsoever. And please also refer ICI guidance note, RBI master circular, master direction, bank policy, and for this TCS commands, bank manual, users manual also. Please check that. So that we already discussed regarding the automation. RBI issued a circular dated 14 September 2020 and directed the banks कि fully automated system should be there, like all NPA, IRAC norms should be through the CBS itself. No manual intervention should be there. Only in case of some exceptions are there. सिर्फ exception cases में आप manual intervention कर सकते हो. Otherwise, all through the CBS system. And the deadline was up to 30th June 2021. So in this audit, we will check it out whether all are through CBS system or not. So let's hope for the best. And then we had already discussed about the core banking system, CBS, and where we had seen uh, mainly basically three very important software in public sector banks in India regarding the Finacle, FlexCube, TCS banks. Finacle, we already discussed, is service provider is the Infosys, FlexCube is the Oracle, and TCS Banks is the Tata Consultancy Services. And we have also received many requests for the FlexCube. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर हो पाया तो बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एकदम से हो पाए अदरवाइज बट वी विल डू विल सेंड यू सम कमांड्स आप उसको डाउनलोड कर सकते हो इवन रिसीविंग मैनी मैसेजेस रिगार्डिंग द फिनेकल कमांड्स तो आप सीए संसार के टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक इज इन टू द कमेंट बॉक्स आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एंड विच बैंक आर यूजिंग ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था विच बैंक आर यूजिंग फिनेकल is used by the Bank of Baroda, Bank of India, Punjab National Bank, Punjab and Sindh Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Union Bank of India. And FlexCube is only by the Canara Bank. And TCS Banks is used by Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Indian Bank and State Bank of India. सबसे बड़ा बैंक is use कर रहा है TCS banks को. So today we'll discuss about the TCS banks by the TCS. तो TCS banks जैसे in the Finacle some commands are there. Here there are some sub menus and then reports. ये उससे भी easy है. Sometimes we think कि banks में जो software था it's really difficult, but no. अगर हम जीएसटी और 9(9)(c) फाइल कर सकते हो देन वी कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं कोई डिफिकल्ट नहीं है इट्स वेरी इजी इसमें तो मेनू में ही सब मेनू आपको फर्दर डिटेल्स आती रहेगी इसमें सो सम ओवरव्यू इज ट्रांजैक्शन आईडी जर्नल नंबर एंड डेट सो जो ट्रांजैक्शन नंबर इज नोन एज द जर्नल नंबर देन कस्टमर मास्टर लेवल कॉन्फ़िगरेशन जहां पे पूरी डिटेल हमने कॉन्फ़िगर करनी है दैट्स फ्रॉम द कस्टमर मास्टर डिटेल मैं अभी आपको शो ऑफ भी करूंगा एंड देन पॉइंटिंग टाइप ऑफ अकाउंट सेल्फ रिकंसिलिएशन अकाउंट इन्वेंट्री लोकेशन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वीपीआई उसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे तो अकाउंट मास्टर मेंटेनेंस जो है उसको वी कैन चेक इट फ्रॉम द डिपॉजिट्स या फिर सीसी ओडी अकाउंट्स एंड देन सर्विसेज
या फिर अगर हमने लोन अकाउंट चेक करने हैं तो डीएल टीएल टर्म लोन डिमांड लोन अकाउंट्स एंड सर्विस मेनू एंड देन इंक्वायरी। और कस्टमर मास्टर मेंटेनेंस को अगर चेक करना है तो कस्टमर मैनेजमेंट मेनू में जाकर चेक कर सकते हैं। देन अकाउंट लेजर इंक्वायरी जो वहां पे हमने फिनेकल में भी देखा था एएलआई, हेयर वी कैन गो थ्रू द डिपॉजिट सीसी ओडी अकाउंट्स सर्विसेज, ये सब आपके मेनू में शो होंगे, उसको आप फर्दर सब मेनू में चेक कर सकते हो। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। एंड रिपोर्ट्स, जो टीसीएस बैंक्स में रिपोर्ट जनरेट होती है, इट्स इनटू द रिपोर्ट्स फोल्डर्स एवरीडे बेसिस पे, यू कैन चेक इट आउट, उसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है। सो जो अकाउंट्स कस्टमर मास्टर एंड इंक्वायरी है उसको, इफ वी वांट टू चेक वन कस्टमर, किसी एक कस्टमर का ऑल अकाउंट्स चेक करने हैं कि उसके कौन कौन सी लिमिट्स हैं, लाइक टर्म लोन है या ओडी लिमिट है, कौन सी है, तो वी कैन गो टू द कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट में जो आपका मेनू है उसमें आप इंक्वायरीज में जाके सर्च कर सकते हो फ्रॉम द सीआईएफ नंबर। सीआईएफ नंबर जो आपका, इट्स जस्ट लाइक ए कस्ट आईडी, कस्टमर इंक्वायरी फाइल जो है उसको आप कस्ट आईडी से आप सर्च भी कर सकते हो। और अगर आपके पास आईडी है तो नेक्स्ट उसमें आपको दिया हुआ है, आप उसकी आईडी के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हो। एंड देन सर्चिंग यूजिंग अवेलेबल नेम, नेम के बेस पे भी सर्च कर सकते हो। लाइक अगर आपको सर्च करना है कस्टमर मैनेजमेंट इंक्वायरीज में, या तो आपका सीआईएफ नंबर है, उसकी कस्ट आईडी है, या फिर उसका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर के बेसिस पे सर्च कर सकते हो, या नेम के बेसिस पे। तो नेम के बेसिस पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके और लिंक्ड जो अकाउंट्स हैं उसका भी पता चल जाएगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड देन इंक्वायरी ऑन द लिंक्ड अकाउंट, ओन्ड अकाउंट, उसमें आप कस्टमर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, ओनरशिप एंड एसोसिएट अकाउंट्स, उसमें इंक्वायरी में आप जाके चेक कर सकते हो। देन सम अदर कमांड्स रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस है रिलेटेड टू कैश ट्रांजेक्शंस, रीपेमेंट डिटेल, मैसेज डिटेल, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो इसको हम चेक कर सकते हैं थ्रू द डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, ओडी अकाउंट्स, कोई भी क्लिक करके, एंड सर्विसेज, एंड देन इंक्वायरी एंड ट्रांजेक्शन, उसके बेसिस पे चेक कर सकते हैं। देन बीजीएल ट्रांजेक्शन, जो आपका जनरल लेजर है उसकी इंक्वायरी कैसे करनी है आपको, बीजीएल इंक्वायरी एंड ट्रांजेक्शन, उसके बेस पे आप कर सकते हो। एंड देन इंक्वायरी फॉर चेक परचेज आर ऑन कलेक्शन, तो उसको आप चेक कर सकते हो, कलेक्शन एंड चेक परचेज एंड देन इंक्वायरीज, उसके बेसिस पे आपको डिटेल आपके पास आ जाएगी। देन नेक्स्ट है ऑफिस अकाउंट मेंटेनेंस। ऑफिस अकाउंट मेंटेनेंस में अगर हमने बीजीएल अकाउंट चेक करना है, उसकी इंक्वायरी चेक करनी है, तो वी विल गो टू द बीजीएल, ब्रांच अकाउंटिंग, इंक्वायरी एंड अकाउंट्स, जो अकाउंट आपको चेक करना है उसकी आप डिटेल चेक कर सकते हो। देन सर्च अकाउंट नंबर बाई बीजीएल नेम, कि अगर आपके पास कोई अकाउंट नंबर है तो उसको भी आप उसके बीजीएल से, जनरल लेजर से चेक करके इंक्वायरी में जाके आप वो कमांड डाल के यू कैन इंक्वायर अबाउट दैट। देन बीजीएल ट्रांजेक्शन इंक्वायरी, तो ट्रांजेक्शन इंक्वायरी में आप जाके जो भी आपके पास अगर ट्रांजेक्शन नंबर है जो पीछे हमने डिस्कस किया, उसको आप पुट ऑन करके उसकी आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। दिस इज सम इम्पोर्टेंट जो हमारे पास ओवरव्यू है रिगार्डिंग द टीसीएस बैंक्स। देन मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग द एडवांसेस, जो हमने एडवांसेस को चेक करना है। सबसे पहले जो हमें चेक करनी है एडवांसेस की मास्टर डिटेल, क्योंकि आपको लफार में भी मेंशन करना है कि उसकी डिटेल रिगार्डिंग द इंटरेस्ट चेक करना है, वो पूरी डिटेल अभी हम लफार के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो जो उसका मास्टर डिटेल चेक करनी है एडवांसेस की, यू कैन गो थ्रू द डिपॉजिट, सीसी, ओडी अकाउंट्स एंड देन सर्विसेज एंड इंक्वायरीज, उसमें आप चेक कर सकते हो। और अगर आप उसका प्रिंट आउट लेना है तो इंक्वायरीज में जाके उसकी स्टेटमेंट प्रिंट की कमांड देके यू कैन टेक द प्रिंट आउट। देन बेसिक डिटेल्स ऑन द इंक्वायरी ऑन स्कीम ऑन डिपॉजिट अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट्स की अगर आपको डिटेल चेक करनी है समराइज वे में, देन इंक्वायरीज शॉर्ट, उसकी आपकी आपकी डिटेल आ जाएगी। एंड देन एडिशनल डिटेल ऑन इंक्वायरी स्क्रीन फॉर डिपॉजिट अकाउंट, तो उसमें भी अगर लॉन्ग डिटेल चेक करनी है तो उसमें पूरी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। शॉर्ट में समराइज वे में देखना है तो शॉर्ट, अगर डिटेल वे में देखना है देन लॉन्ग। एंड देन डिटेल ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट ऑफ एन अकाउंट, तो आपको इंटरेस्ट की हिस्ट्री चेक करनी है कि कब कब इंटरेस्ट मॉडिफाई होगा, तो दैट यू कैन चेक इट फ्रॉम द डिपॉजिट, सीसी, ओडी अकाउंट्स एंड सर्विसेज एंड देन इंटरेस्ट रेट एंड हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री से चेक कर सकते हो। देन लोन अकाउंट ऑपरेशंस, कि उसके ऑपरेशंस क्या ट्रांजेक्शंस है, यू कैन चेक फ्रॉम द डीएल टीएल, डिमांड लोन, टर्म लोन अकाउंट एंड सर्विसेज, लोन ट्रैकिंग एंड द ऑपरेशन, उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। एंड अगर उसका प्रिंट आउट करना है रीपेमेंट शेड्यूल का, कि कैसे कैसे उसकी पेमेंट्स आ रही हैं रिगार्डिंग द डिमांड लोन या टर्म लोन, यू कैन गो थ्रू देयर अकाउंट, देन लोन प्रोसेसिंग, जनरेट रीपेमेंट शेड्यूल एंड देन एक्शन में इंक्वायरी एंड प्रिंट आउट।
Then to view amount of arrears and breakup of principal, interest realized, charges and rate of interest, area of interest, that you can check from the DLTL accounts and services. Then inquiries, short एंड ऑप्शन में आपको क्या करना है, बैलेंस ब्रेकअप इंक्वायरी. तो आपके पास मेनू, सब मेनू, फिर आपके पास डिटेल आपको डालते जाना है, वट एवर यू वांट इट विल बी ऑन योर स्क्रीन. एंड देन इंक्वायर ऑन द लिंक्ड कोलेट्रल, जो आपकी कोलेट्रल सिक्योरिटीज है, अगर उसकी आपको डिटेल चेक करनी है तो आप वो चेक कर सकते हो फ्रॉम द DLTL अकाउंट्स और सर्विसेज. देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप चेक कर सकते हो कौन सी प्राइमरी या कोलेट्रल है. फिर उसमें कस्टमर इंक्वायरी, एंड इंक्वायरी में सिक्योरिटी समरी, तो डिटेल विल बी देयर. देन कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारी TCS बैंक्स मेनू रिपोर्ट्स हैं, उसमें क्या है, एक तो क्लोजिंग GLB, अगर आपने क्लोजिंग ट्रायल चेक करना है, क्लोजिंग ट्रायल कैसे चेक कर सकते हो आप, उसमें आप डिटेल OGL में जाके डिटेल ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट एज ऑन डेट या वीकली किस डेट को आपको चेक करनी है, दैट यू कैन चेक इट आउट. देन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, दैट्स द जोटिंग रिपोर्ट. You should ask the bank manager if you are using the TCS banks regarding the joting reports. कि जोटिंग रिपोर्ट आपको एक लोन बैलेंस फाइल से मिल जाएगी, उसमें एक कंबाइंड डिटेल आ जाएगी जितनी जितनी फैसिलिटीज है, तो यू कैन आस्क फ्रॉम द जोटिंग रिपोर्ट इटसेल्फ. देन इफ यू वांट टू चेक SMA अकाउंट, जो SMA अकाउंट्स है, SMA 0, 1, 2, उसके बाद आपके जो पोटेंशियल NPS है, तो दैट यू कैन चेक फ्रॉम द PNPA SMA रिपोर्ट्स, irregular excess drawing, standard account irregular, then this is from the SMA 0, SMA 1, SMA 2, उसकी अलग से आपकी रिपोर्ट जनरेट होंगी, that you can check it out according to the RBI circular. Then assets classification, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो आपके एसेट्स क्लासिफिकेशन है, उसके लिए आपके अलग से NPA रिपोर्ट्स, उसमें रिपोर्ट्स में यू कैन चेक इट आउट दैट NPA रिपोर्ट किस डेट को चेक करनी है, बिकॉज एज पर न्यू RBI सर्कुलर जो क्लैरिफिकेशन आई थी, उसमें डे एंड रन प्रोसेस इज देयर, सो एवरी बैंक हैव टू रन ऑन द डेली बेसिस, और डेली बेसिस पे उनको SMA 1, SMA 2, NPA अकाउंट डेली बेसिस पे चेक करने पड़ेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट मंथ एंड, तो आपको डेली बेसिस पे ही चेक करना है, तो उसमें से यू कैन डू फ्रॉम द टेस्ट चेक इटसेल्फ. देन रीस्ट्रक्चरिंग, मॉडिफिकेशन इन लिमिट्स रिगार्डिंग द चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल, उसको आप चेक कर सकते हो. DLTL, देन अकाउंटिंग स्टेटमेंट में लोन प्रोसेसिंग, जनरल रीपेमेंट शेड्यूल, एंड देन एक्शन इज E. देन वेरियस अदर रिपोर्ट्स है, कुछ एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स वगैरह आपको चेक करनी है एंड ऑफ द डे पे, BOD रिपोर्ट्स, तो उसको आप एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से चेक कर सकते हो. सम अदर यूजफुल रिपोर्ट्स जैसे आपकी SMA, NPA, PNPA, लाइकली NPA, डेली NPA, तो सब आपकी रिपोर्ट्स में आप चेक कर सकते हो. एंड देन दिस इज रिगार्डिंग द LFAR, जो कुछ आपको LFAR में मेंशन कर रहा है, तो इस सब के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Today we are only discussing regarding the some commands of the financial banks, जो उनके, सॉरी financial के ऊपर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, TCS बैंक्स के जो मेनू रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं. financial के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, LFAR के ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अराउंड 11-12 वीडियोस अब, इफ यू आर स्किप्ड यू कैन गो टू द CA Sansaar यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएंगे रिगार्डिंग ओवरव्यू ऑफ द बैंक ब्रांच ऑडिट, देन रिगार्डिंग द ऑडिट प्लानिंग, प्लानिंग कैसे करनी है, फिर ऑडिट ऑफ एडवांसेस, देन आयरेक नॉर्म्स, देन ऑडिट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस, देन NPA केस स्टडीज, उसके बाद हमने डिस्कस किया था MOCs के ऊपर, फिर हमने LFAR के ऊपर डिस्कस किया था, फिर दिस कमांड्स, जो फिनेकल कमांड्स, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द TCS बैंक्स, बैंक्स की कमांड्स, जो कैश, तो कैश तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको फिजिकली वेरीफाई करना है. वैसे तो आपको 31 मार्च का भी आपसे स्टेटमेंट लेंगे कैश सर्टिफिकेट, बट एट दैट डे यू आर नॉट अवेलेबल, तो आप जिस दिन वेरीफाई करना चाहें उस डेट का भी सर्टिफिकेट देंगे, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम बैंक्स जो सिस्टम की रिपोर्ट्स में जाके, रिपोर्ट्स कैश रिलेटेड, व्यू कैश समरी, तो उस डेट को आप चेक कर सकते हो. या फिर आप ब्रांच रिपोर्ट्स में भी जाके कैश ऑफिसर जोटिंग रिपोर्ट, उसमें आप प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट कर सकते हो, आपको कैशियर टेलर जो कैश रिपोर्ट्स है वो आप चेक कर सकते हो रिगार्डिंग द कैश. एंड देन बैलेंस विद RBI, SBI, अदर बैंक्स, तो जो इस बैलेंस है, यू शुड आस्क द डिटेल फ्रॉम द बैंक मैनेजर. उसकी जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, उसको आपको अलग से लेना है, तो दैट यू कैन चेक द बैंक अकाउंट, उसको आप टैली कर सकते हो. BGL उसमें जाके इंक्वायर एंड ट्रांजेक्शंस, उसमें आप उसके कौन सा चेक करना है. देन एडवांसेस, एडवांसेस का ऑलरेडी वी हैड डिस्कस कि आपको जो अकाउंट्स एंड कस्टमर मास्टर
पैरामीटर सेटअप चेक करना है, इंटरेस्ट का पैरामीटर चेक करना है, रीपेमेंट इंस्ट्रक्शन चेक करनी है, कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चेक करनी है, लिंकिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट वो चेक करने हैं। तो उसको कहाँ से चेक करोगे? बैंक सिस्टम में। तो उसमें डिमांड लोन, टर्म लोन, अकाउंट्स एंड सर्विसेज, उसमें आप इंक्वायरीज में जाके अकाउंट, डिपॉजिट, सीसी और ड्यू में जाके, तो इंक्वायरीज में शॉर्ट एंड लॉन्ग जो भी आपको डिटेल चाहिए, शॉर्ट्स में या लॉन्ग में डिटेल चाहिए, वो ऑप्शंस आर देयर, वो सेलेक्ट करके यू कैन चेक इट आउट। देन ट्रांजेक्शन इन बोरोवर्स अकाउंट, कि बोरोवर अकाउंट के ट्रांजेक्शन चेक करने हैं, तो सीसी ऑडिट, अकाउंट सर्विसेज, इंक्वायरी, ट्रांजेक्शन, देन डिमांड लोन, टर्म लोन, अकाउंट सर्विसेज, इक्वाइरी, ट्रांजेक्शन, किसी भी मोड से आप चेक कर सकते हो। देन इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री, इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री के ऊपर भी आपको लफार में रिपोर्टिंग करनी है, तो उसको आप चेक कर सकते हो डिपॉजिट्स में जाके, डिपॉजिट, सीसी, ओडी अकाउंट सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट सर्विसेज, या फिर डिमांड लोन, टर्म लोन, अकाउंट एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री, वो आप चेक कर सकते हो। एंड देन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट, अगर कोई टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट है तो दैट यू कैन चेक फ्रॉम द डिपॉजिट, सीसी, ओडी अकाउंट्स एंड सर्विसेज, देन इंक्वायरी, इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री, उसमें आप लिमिट हिस्ट्री सेट चेक करके आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो, क्या हिस्ट्री है, कब कब चेंजेस है। देन एनपीएस के ऊपर, एनपीएस के ऊपर आई टोल्ड यू रिपोर्ट्स आर देयर, आप उसको डीएलटीएल में जाके, सेलेक्ट सर्विसेज में जाके, इंक्वायरीज, एंड देन ऑप्शन 1 टर्म लोन, डिमांड लोन के ऊपर वो आपको लॉन्ग इंक्वायरी फॉर एनपीए डेट आ जाएगा, या फिर डिपॉजिट, सीसी, ओडी अकाउंट्स में अगर उसमें कोई आपके डेबिट बैलेंसेस हैं, तो दैट आल्सो यू कैन चेक फ्रॉम द सेकंड ऑप्शन, वो डिटेल आ जाएगी आपकी लॉन्ग इंक्वायरी ऑफ द एनपीए डेट। देन अनदर वन इज कॉमन प्रोसेसिंग ओवरड्यू, जितने भी एनपीएस है, तो उसके बेसिस पे आप रिस्क ग्रेड इंक्वायरी, एनपी स्टेटस इंक्वायरी चेक कर सकते हो। एंड देन एडवांसेस में इंटरेस्ट रिपोर्ट, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, प्रोडक्ट शीट में जाके, अगर वहां पे यूजर अवेलेबल नहीं है तो आप डाटा सेंटर से मंगवा सकते हो। एंड देन प्राइमरी एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी मेंटेनेंस, जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, कोलेट्रल सिक्योरिटी है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था, तो आप उसमें जाके डिमांड लोन, टर्म लोन, अकाउंट एंड सर्विसेज में जाके सिक्योरिटी मेंशन करके, जो भी है प्राइमरी या कोलेट्रल, उस वक्त कस्टमर अमेंड इंक्वायरी, तो आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी उसकी। एंड देन लीन मार्केटिंग, जो आपकी लीन मार्किंग, पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि लीन मार्किंग के लिए हमें दोनों जगह पे लीन करना पड़ता है, चाहे वो आपकी फिजिकल्स है, आपके एफडीआर या इसके केवीपी, आईवीपी, एंड आल्सो इनटू द सीबीएस सिस्टम। तो सीबीएस सिस्टम में आप डीएलटीएल अकाउंट सर्विसेज में जाके सिक्योरिटी, प्राइमरी कोलेट्रल, देन कस्टमर अमेंड इंक्वायरी, एंड देन उसके बेसिस पे कोलेट्रल आईडी जो भी है वो उसमें आपको पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसका लिंक लीन मार्क कर सकते हैं। देन अकाउंट लेजर प्रिंटिंग, कि अगर कोई अकाउंट लेजर प्रिंट करना है आपको एडवांसेस में, दैट यू कैन गो टू द प्रिंट मेनू, उसमें डीएलटीएल अकाउंट्स में चेक करके, या फिर आपको डिपॉजिट्स में चेक करना है, डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट में, उसमें जाके प्रिंट मेनू में आप क्लिक कर सकते हैं एंड टेक द प्रिंट आउट। देन नॉन फंड बेसिस जो फैसिलिटी है, एलसी, बीजी, तो उसमें आप ट्रेड मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर जाके दैट यू कैन जनरेट द रिपोर्ट। देन जो स्टेशनरी, पीछे भी हमने डिस्कस किया था, फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको चेक वगैरह जो आपकी स्टेशनरी को उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो दैट यू कैन गो थ्रू द वीपीआईएस, वैल्यूएबल पेपर इन्वेंटरी सिस्टम, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो, उसका भी आपको लफार में मेंशन करना है। देन सम सस्पेंस अकाउंट अगर कोई है, सन्डी एंड ऑफिस अकाउंट, उसकी एंट्रीज अगर कोई है, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द ऑडिट बीजीएल अकाउंट एज वाइज ब्रेकअप एंड जीएल आउटस्टैंडिंग अकाउंट, उसकी रिपोर्ट्स में जाके दैट यू कैन चेक इट आउट। एंड अगर उसका प्रिंट आउट लेना है, देन बीजीएल अकाउंट अकाउंटिंग मेनू में जाके प्रिंट की कमांड देके यू कैन टेक इट आउट। देन इंटर ब्रांच अकाउंट्स, अगर कोई इंटर ब्रांच है, रिकनसाइल्ड है या अनरिकनसाइल्ड है, स्टेटमेंट आ गई है, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग आईबीआर रिपोर्ट या आईबीआर समरी रिपोर्ट, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। टीडीएस रिलेटेड, जो टीडीएस वैसे तो टैक्स ऑडिट इज फ्रॉम द एचओ लेवल, बट कुछ टीडीएस आपको देखने हैं वेदर इज डिडक्टेड प्रॉपर्ली और नॉट, दैट यू कैन टीडीएस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से चेक कर सकते हो, जो मंथली बेसिस पे आपकी रिपोर्ट ऑन अकाउंट वाइज या ट्रांजेक्शन वाइज डिडक्शन है, उसमें से भी आप चेक कर सकते हो। देन सम इंपॉर्टेंट, जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था इनटू द एट दैट टाइम फिनेकल कमांड्स के ऊपर, कि सम मैनिपुलेशन कैन बी देयर, मैनिपुलेशन भी हो सकते हैं या सम एरर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई मल्टीपल कस्टमर आईडी है किसी कस्टमर की, वैसे तो वन कस्ट आईडी इज देयर, बट समटाइम इफ पॉसिबल कि मल्टीपल कस्टमर आईडी है, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द
कस्टमर मैनेजमेंट इंक्वायरीज, उसमें सर्च बाय नेम, नेम से सर्च करके आपको देखना है मैच कौन से नेम है। उसके बाद उनकी डिटेल चेक कर सकते हो, उनके पैन नंबर या आधार कार्ड के बेसिस पे चेक कर सकते हो आइदर इज द सेम पर्सन और नॉट। तो मल्टीपल केस आईडी के केसेस में यू कैन चेक इट आउट। देन इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री, इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री का अगर आपने डिटेल चेक करनी है, दैट यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द डीएलटीएल जो अकाउंट है उसमें आपका अकाउंट रेट हिस्ट्री एंड check the detail. Then rotation of entries in office account, cash payment from office account. I told you earlier जब हमने audit of advances check किया था, किसी in some cases कई बार might be possible and in 1-2 cases we have faced that कि कुछ sometime आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं आर रूटेड थ्रू द ऑफिस अकाउंट इटसेल्फ, कि ऑफिस में अकाउंट ओपन कर रहे हैं एंड दैट इट्स रूटेड टू द सीसी और द टर्म लोन कि आपको उसको एनपीए सेव करने के लिए, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द बीजीएल इंक्वायरी ट्रांजेक्शन, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। एंड देन डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई ईएमआईज है उसको सेटिंग में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आपको मास्टर अकाउंट चेक करना है उसमें आपको। तो इट कैन बी पॉसिबल कि ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट है करेक्टली सेटअप है, जो आपका सैंक्शन लेटर है इसको भी आप टेस्ट चेक बेसिस पे चेक कर सकते हो, बिकॉज आई अर्लियर आई टोल्ड यू कि इट्स नॉट फुल प्रूफ कि आपको ये लगे कि सीबीएस सिस्टम से है तो सब कुछ ठीक है, नो। तो आप जो फीड करोगे, इट्स जो आप इनपुट डाटा आप मेंशन करोगे सेम आउटपुट दे विल गिव। तो अगर आपने ईएमआई की अमाउंट कम कर दी या उसकी डेट रॉन्ग मेंशन कर दी या सैंक्शन लेटर में कुछ हो रहा है, सीबीएस में कुछ और फीड हुआ है, तो उसका रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो दैट यू कैन चेक फ्रॉम द डीएलटीएल अकाउंट, उसमें इंक्वायरी में जाके इंक्वायरी अकाउंट डिपॉजिट सीसी, तो उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। एंड देन इंक्वायरी डिपॉजिट सीसीओडी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग पूरी डिटेल उसमें आप चेक कर सकते हो। एंड देन दिस इज द केस was where same type of EMI is there, but if there are multiple set of EMIs कि फर्स्ट 5 मंथ्स कुछ और है, नेक्स्ट 5 मंथ्स कुछ और है, तो उस केस में यू कैन आल्सो चेक फ्रॉम द डीएलटीएल अकाउंट एंड सर्विसेज, देन इंक्वायरीज अकाउंट्स डिपॉजिट सीसी ओडी अकाउंट एंड सर्विसेज में जाके, एंड दिस आल्सो अवेलेबल इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग इंक्वायरी में आप डिटेल चेक कर सकते हो। आप टेस्ट केसेस में देख सकते हो कि इट्स सेम एज पर द सैंक्शन लेटर और नॉट। एंड देन मैनिपुलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेंशन भी करना है लफार में कि डीपी वेदर इट्स करेक्टली कैलकुलेटेड और नोट, इफ देयर आर सम डाइवर्जेंसेस तो उसमें आपको अपना मेंशन करना है। तो आप डीपी और सैंक्शन लिमिट सैंक्शन लेटर से चेक कर सकते हो उसके। एंड देन इफ देयर इज एनी चेंज तो उसको चेंज में क्या स्कोटेड है, तो दैट आर द कमांड इज देयर, और उसके अंदर रिपोर्ट्स देयर टेलर मेड रिपोर्ट ऑन चेंज इन द अकाउंट्स लिमिट, वो आपको रिपोर्ट्स में मिल जाएगी। देन मोरेटोरियम पीरियड, अगर मोरेटोरियम पीरियड कुछ रॉन्ग मेंशन कर दिया, फ्यूचर का मेंशन कर दिया, उसमें भी आपकी रिपोर्ट्स विल बी रॉन्ग, रिपोर्ट्स विल बी देयर। आप उसको अकाउंट मास्टर डिटेल्स में जाके लॉन्ग इंक्वायरी में चेक कर सकते हो। देन इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट इज डिफरेंट डेट, कि अगर इंस्टॉलमेंट की डेट आज की आपने फ्यूचर में और उसमें सीबीएस में मेंशन कर दी, देन आल्सो एनपीए में इशू आएगा। तो आप उसको सैंक्शन लेटर से चेक कर सकते हो अकाउंट मास्टर डिटेल में जाके लॉन्ग इंक्वायरी में। देन फिक्टिशियस क्रेडिट थ्रू ऑफिस अकाउंट, जो मैंने आपको भी बताया कि ऑफिस अकाउंट के थ्रू कुछ क्रेडिट्स हो जाते हैं अकाउंट्स में, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। देन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट, कि कुछ टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट में आपको टेम्परेरी टीओडी रिपोर्ट मिल जाएगी। देन एलसी डिवॉल्ट, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में, कि अगर एलसी डिवॉल्व है, एनपी केस स्टडीज में हमने केस भी डिस्कस करे थे कि कोई एलसी है, इट्स ए डिवॉल्व बट इट शुड बी डेबिटेड इनटू द लिमिट अकाउंट, बट सम टाइम व्हाट हैपेंस वो अलग से पार कर देते हैं, अलग से एलसी डिवॉल्व अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट या किसी और अकाउंट में मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स द रॉन्ग थिंग, इट शुड बी डेबिटेड। तो आपको चेक करना है फ्रॉम द रिपोर्ट्स ऑफ डेवलप्ड बिल्स अंडर इंपोर्ट एलसी, उसमें आपको चेक करना है। देन मल्टीपल कस्ट आईडी, जो भी हमने डिस्कस किया था टू प्रिवेंट द अकाउंट, तो मल्टीपल कस्ट आईडी को आप कस्टमर मैनेजमेंट इंक्वायरीज में जाके सर्च बाय नेम से सर्च कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस वन कस्ट आईडी है, बट इन केस मल्टीपल कस्ट आईडी है टू सेव द एनपी अकाउंट, तो वो आप सर्च कर सकते हो। देन इंटरेस्ट रेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक ये दो बार आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टीसीएस बैंक्स कमांड, इसमें जो टीसीएस बैंक के अंदर कुछ मेनू या सब मेनू या रिपोर्ट्स है। सो विल ट्राई, अगर पॉसिबल हो पाया, बिकॉज रिसीव्ड मैनी रिक्वेस्ट फॉर द फ्लेक्स क्यूब जो कैनरा बैंक यूज कर रहा है, अदरवाइज विल गिव द कमांड्स जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं इनटू द सीए संसार
जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें ऑल कमांड्स विल बी देयर, आज ही पुट ऑफ कर देंगे। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो माइट बी लास्ट वीडियो होगा फॉर दिस बैंक ब्रांच ऑडिट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू सेव योर सेल्फ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रखना है। उसमें भी ऐसे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे इशू किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आपको सेव करने हैं, बिकॉज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर डूइंग बैंक ऑडिट उनका भी पीयर रिव्यू होगा. एंड आल्सो टू सेव योर सेल्फ कि कल को कोई इंक्वायरी है, somebody ask RBI या CBI ED, टचवुड कोई ना पूछे, बट इफ दे आस्क यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंटेशन कि आपने क्या क्या कैसे चेक किया था, ऑल द वर्किंग पेपर्स, ऑल द सर्कुलर, ऑल अदर थिंग्स क्या क्या है, RBI हैज मेंशन द डिटेल्स, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. सो इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेरी or any feedback, any suggestion, you can mention at my mail ID. ये मेल आईडी भी है, या फिर आप मेंशन कर सकते हो माई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही चीज आती है, पीपीटी. उसके अलावा आस्क सम क्वेश्चन, गिव सम सजेशन, गिव सम फीडबैक, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना, देन वी विल ट्राई. सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ब्रांच ऑडिट.